Hello students, hope you all doing well. I Dinesh Rawat, your subject faculty for the subject Financial Markets and Institutions. And today the topic is primary market. So as you know, हमने previous lecture में discuss करा था money market, which is one of the form of, or you can say one of the type of financial market. And apart from money market, we have capital market. सो कैपिटल मार्केट में हम डिस्कस करते हैं दो मार्केट को, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी मार्केट. सो लेट्स स्टार्ट. सो दीज आर द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर द पीपीटी कंटेंट हैज बीन मेड. सो यू कैन सी द रेफरेंसेस. नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट. एक्चुअल प्राइमरी मार्केट में क्या डेफिनेशन है उसकी, और प्राइमरी मार्केट का पर्पस क्या रहता है. सो प्राइमरी मार्केट अगर हम लेमन टर्म्स में कहें, सो कोई भी कंपनी अगर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, जो भी उनके शेयर्स होते हैं, उसको अगर वो इशू करना चाहती है जनरल पब्लिक को, सो वो हेल्प लेती है प्राइमरी मार्केट की. सो अगर आप डेफिनेशन देखें तो प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट और NIM. The securities which are introduced in the market are sold for the first time to the general public. So securities means shares. Shares जो होते हैं they are issued or they are sold to the general public for the first time. So most companies generally क्या रहता है कि most companies, जो भी company start होती है, they are usually started privately by their promoters. हाउएवर क्या होता है, द प्रोमोटर्स कैपिटल एंड जो भी उनकी बोरोइंग्स हैं फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग द बिजनेस ओवर अ लॉन्ग टर्म. सो कंपनी आपने स्टार्ट करी, आपने बैंक से लोन लिया या फिर जो प्रोमोटर्स का फंड है, जरूरी नहीं है कि वो फंड सफिशिएंट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. सो आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए जिसको आप इन्वेस्ट कर सके कहीं. सो कंपनीज क्या करती हैं, दे इनवाइट जनरल पब्लिक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इक्विटी एंड इशू शेयर्स टू द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. सो कंपनी नाउ दे विल इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक एंड दे विल इनवाइट फंड. So the way to invite share capital from the public is called public issue. So that is a very important term in primary market, that is called public issue. So public issue क्या है, when you invite share capital from public, that is public issue. Simply stated, a public issue is an offer to the public to subscribe to the share capital of the company. Once this is done, the company allots shares to the applicants as per the prescribed rules and regulation laid down by SEBI. SEBI हमने डिस्कस करा था, जैसे one of the institution that is called Security Exchange Board of India. So public issue, that is very important term. जब भी आप जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है कोई भी कंपनी, that is your public issue. सो प्राइमरी मार्केट का रूल क्या रहता है, द प्राइमरी मार्केट रूल इज टू प्रोवाइड द चैनल फॉर द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज. कोई भी कंपनी अपनी शेयर्स को जब जनरल पब्लिक को वो इशू करेगी, सो दैट इज अ चैनल इज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज. दैट मीन्स कंपनीज को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एज वेल एज गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स टू रेज रिसोर्सेज. To raise resources, that is one of the role of primary market, to meet their requirement of investment or discharge some obligation. This may issue the security, they may issue the securities at face value or at discount or premium, and these securities may take a variety of form. It can be equity, it can be debt. So वो shares भी हो सकते हैं, और it can be bonds also, it can be your treasury bills also, so any debt security. Now primary market में जैसे हमने कहा public issue is very important term. So these primary issues are used by the companies for the purpose of setting new businesses or expanding their existing business. So जो भी वो resources, जो भी fund जो वो collect कर रहे हैं आपसे, so उनका use क्या रहेगा, that is setting new businesses or expanding their existing businesses. So there are three ways of offering new issue. जब भी शेयर्स ऑफर करते हैं तो तीन तरीके होते हैं उनके पास, that is
पहला होता है IPO, that is called initial public offering. Second is preferential issue and third is rights issue. So इसको हम डिस्कस करेंगे one by one. First we will come to IPO, that is called initial public offering. So it is when an unlisted company, remember unlisted company मतलब अभी तक वो कंपनी लिस्ट नहीं हुई है स्टॉक एक्सचेंज. दो स्टॉक एक्सचेंज है आपके पास, Bombay Stock Exchange या National Stock Exchange. So it is an unlisted company makes either a fresh issue of securities, बिल्कुल नए शेयर्स वो आपको इशू कर रही है, और ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल ये होता है कोई प्रमोटर है पहले से, उसके अगर वो शेयर्स जो प्रमोटर के हैं वो जनरल पब्लिक को इशू करना चाहती है, तो या तो वो फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज होगा या ऑफर फॉर सेल होगा ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, और बोथ दोनों वो कर सकती है, फ्रेश इशू भी एंड ऑफर फॉर सेल भी, फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक. सो दिस इज कॉल्ड योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. व्हेन अ अनलिस्टेड कंपनी either a fresh issue or offer for sale or both for the first time to the public. This paves way for listing and trading of issuer security. So once it is done, then the company would get listed on that particular stock exchange. अब नेक्स्ट आता है हमारा फर्दर इशू, हम इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. सो एक बारी कंपनी लिस्ट हो गई है, जो अनलिस्टेड थी अगर वो लिस्ट हो गई है, सो व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मेक्स आइदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक एंड ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक. सो कोई लिस्टेड कंपनी जो एक बारी लिस्ट हो चुकी है, अगर वो फ्रेश इशू करती है सिक्योरिटीज को या ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक, देन इट इज कॉल्ड थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट, देन इट इज कॉल्ड फर्दर इशू और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, इसको हम कहते हैं. सो दो टर्म्स हैं, वन इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब अनलिस्टेड कंपनी करती है, एंड व्हेन लिस्टेड कंपनी डज दैट देन इट बिकम्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. The price at which a company shares are offered initially in the primary market is called issue price. So ये बहुत important है. अभी एक आपको असाइनमेंट मिलेगा तो उसमें दिस इशू प्राइस आपको फाइंड आउट करना होता है. सो इशू प्राइस होता है जिस प्राइस पे कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे हैं जनरल पब्लिक को, और जब वो एक बारी लिस्ट हो जाए, सो जिस प्राइस पे वो ट्रेड करती है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं. So when they begin to be traded, the market price may be above or below the issue price. So when a company get listed and listed होने के बाद जब वो ट्रेड होती है, सो जो उस प्राइस पे ट्रेड होगी उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस, और वो मार्केट प्राइस इशू प्राइस से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. And very important term, that is the sale of securities can be either through book building or through normal public issue. So जो इशू प्राइस होता है जिसपे इन्वेस्टर्स को या जो जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू होते हैं, वो इशू प्राइस कैसे हो सकता है? इट कैन बी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस और इट कैन बी थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू. सो हम डिस्कस करते हैं अब. नेक्स्ट वाज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अगर इसको थोड़ा और इसकी डेफिनेशन देखें, सो आईपीओज आर ऑफन इशूड बाय अ स्मॉलर younger companies seeking the capital to expand. That is the main purpose. कैपिटल चाहिए होती है किसी भी कंपनी को. सो जनरली वो स्मॉलर या यंगर कंपनीज भी होती हैं, बट कैन ऑल्सो बी लार्ज प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज. सो ऐसा नहीं है, लार्ज कंपनीज भी हैं, they can also go for IPO, initial public offering. In an IPO, the issuer obtains the assistance of an underwriting firm. So this is very important. अंडरराइटिंग फर्म होती है इस सारे प्रोसेस में, किसी भी कंपनी को हेल्प करती है, दैट इज अंडरराइटिंग फर्म. सो बहुत सारे अंडरराइटिंग फर्म है, तो बट जनरली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये वो रोल प्ले करते हैं अंडरराइटिंग फर्म का, विच हेल्प्स इन डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू इशू. कैसे आपको शेयर्स इशू करने चाहिए, कॉमन शेयर होने चाहिए, प्रेफर्ड शेयर होने चाहिए, या बेस्ट ऑफरिंग प्राइस क्या होना चाहिए, किस प्राइस पे ऑफर करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, एंड टाइम टू ब्रिंग इट टू द मार्केट, कौन सा करेक्ट टाइम होता है एक आईपीओ के लिए. तो ये अंडरराइटिंग फर्म हेल्प करती है उन कंपनीज को जो आईपीओ के लिए प्रोसीड करती हैं. सेकंड हमने डिस्कस करा था राइट इशू. सो फर्स्ट वाज योर आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. थर्ड जो सेकंड आपका काइंड ऑफ इशू में आता है, दैट इज कॉल्ड योर राइट
issue. इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं. So it is when a listed company, remember listed company एक बार लिस्ट हो सकती है, which proposes to issue fresh securities to its existing shareholder. जो लिस्टेड है उसके कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, उन शेयर होल्डर्स को फिर से अगर वो फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करती है, सो हमारा होता है राइट इशू. सो एज ऑन अ रिकॉर्ड डेट, एक पर्टिकुलर डेट को कंपनी डिसाइड करती है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको हम फ्रेश इशू, मतलब जो भी उनके एक नए शेयर्स हैं उनको इशू करते हैं वो. सो उनके पास ऑप्शन होता है, दे वांट टू बाय इट और नॉट. The rights are normally offered in a particular ratio to the number of securities held prior to the issue. So अगर मैं शेयर होल्डर हूँ पहले से, so मेरे पास जब भी एक ऑप्शन आता है कंपनी के थ्रू कि वी आर इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज, एंड वो जो हमें ऑप्शन मिलेगा दैट वुड बी इन अ पर्टिकुलर रेशियो. सो एक पर्टिकुलर रेशियो में आपको मिलता है कि इफ यू हैव टू सिक्योरिटीज, सो आपको एक्स्ट्रा एक सिक्योरिटी मिल रही है लेट सपोज, एंड उसका आपको प्राइस वो बता देते हैं. सो दिस रूट इज बेस्ट सूटेड किसके लिए, कौन सी कंपनीज के लिए रहता है, दोज हु वुड लाइक टू रेज कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग स्टेक ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अगर इशू करना है, इसका मतलब दे आर नॉट इनवाइटिंग न्यू शेयर होल्डर्स, so they are not diluting their stake. So that is best suited for those companies जो extra shareholders को invite नहीं करना चाहती है, existing shareholders को ही listed company new issue securities issue करती है. So that is your rights issue. And third type of issue was preferential issue. Preferential issue is an issue of shares or convertible securities by listed company, again a listed company, to a select group of person. So existing नहीं, एक select group of person को यहाँ पर new shares issue करे जाते हैं under section 81 of Companies Act, which is neither the right issue nor a public issue. So it is not a right and public. This is a faster way for companies to raise equity capital. अपने लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन है उनको आप इशू करते हैं शेयर्स को, एग्जिस्टिंग को नहीं, ना ही न्यू पब्लिक को, बट कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन है उनको आप इशू करते हैं. सो द इशूअर कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट. दैट इज कॉल्ड योर प्रेफरेंशियल इशू. यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन एंड यू इशू योर सिक्योरिटीज टू देम. प्रेफरेंशियल इशू को हम जनरली प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहते हैं, इसका जो सेकंड नेम है. It is also very important, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी प्राइवेट प्लेसमेंट. So preferential issue can be defined as an issue of stock available only to designated buyers. So there is a set of group of buyers. These buyers are a select set of people, whether promoters हो सकते हैं, it can be your relatives, कंपनी के जो promoters हैं उनके relatives, institutional investors हो सकते हैं. So ones could call it a whole, one can call it a wholesale security market. So wholesale में इसका दूसरा नाम हम इसको ये भी बोल सकते हैं wholesale equity market. Wholesale मतलब आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को वो चीज इशू कर दी, since the retail investor and shareholders are not invited. So इसलिए इसका नाम wholesale equity market भी कहते हैं इसको. So preferential issue, private placement और wholesale equity market. So ये जो हमने डिस्कस कराया अभी काइंड ऑफ इशू में, फर्स्ट वाज योर पब्लिक इशू. जब भी होता है पब्लिक इशू में एक तो हो सकता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग. राइट इशू सेकंड, एंड थर्ड इज प्रेफरेंशियल इशू. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस whenever a question comes on the kind of issues in primary market. So you have to write all three type of issue. Public जिसमें IPO हो सकता है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग हो सकता है, राइट इशू जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं पर्टिकुलर डेट पे एंड पर्टिकुलर रेशियो पे, एंड प्रेफरेंशियल इशू जब एक प्राइवेट प्लेसमेंट भी इसको हम कहते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को यू इशू योर सिक्योरिटीज. नाउ कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं. इशू प्राइस, जैसे हमने कहा जब भी सिक्योरिटीज इशू करते हैं तो किस प्राइस पे इशू करें, शेयर जनरल पब्लिक हो या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तो उस प्राइस को हम कहते हैं इशू प्राइस. So if you see the definition, the price at which a company's shares are offered initially in the primary market is called issue price. So when they begin to be traded, the market price may be above and below the issue price. So एक बार ही अगर वो लिस्ट हो गई, जब वो ट्रेड करती हैं तो वो मार्केट प्राइस हो जाता है.
Let's suppose the market value of a quoted company, which is calculated by current share price by the number of shares in issue, is called market capitalization. So what is market capitalization? Market capitalization is the multiplication of market price आपका एक शेयर का into the number of shares. So अगर कंपनी के पास 120 मिलियन शेयर्स हैं और हर एक शेयर की करंट मार्केट प्राइस वैल्यू 100 रुपीज है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 120 into 100, that is 1000, you can say 12,000 million. So this is the market capitalization. So market capitalization is, it is the multiplication of number of shares into the current share price of a particular of one share. सेकेंड हमारे पास आता है पब्लिक. कभी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट. सो प्राइवेट प्लेसमेंट हमने जैसे कहा था पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेट, ग्रुप ऑफ बायर्स को आप देते हैं. सो अगर हम उसकी एक डेफिनेशन देखें, सो व्हेन एन इशू इज नॉट मेड to not only a set of people but it is open to general public, then it is a public issue. But if the issue is made to set of people, then it is called private placement, जिसको हम preferential issue भी कहते हैं. So as per Companies Act, an issue becomes public if it result in allotment of 50 persons or more. अगर 50 या 50 से ज्यादा पर्सन है तो वो पब्लिक इशू बन जाता है, और 50 से कम है then it becomes a private placement. तो अब जैसे मैंने बताया था कि आपको इन सब एक्टिविटीज में आपको एक मर्चेंट बैंक होता है. मर्चेंट बैंक हेल्प करता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कंपनीज को इन दिस इशू, जो भी वो पब्लिक इशू में के लिए कर रहे हैं. सो हु डिसाइड द प्राइस ऑफ एन इशू? ऑब्वियसली वो कंपनी इन कंसल्टेशन विद द मर्चेंट बैंकर. सो दे डिसाइड द प्राइस ऑफ द इशू. इसमें ना ही सेबी का कोई रोल है, ना ही स्टॉक एक्सचेंज का कोई रोल होता है when deciding the price of the issue. So there is no price formula stipulated by SEBI. SEBI does not play any role in price fixation. The company and the merchant banker are however required to give a full disclosure of the parameters which they have considered while deciding the issue. So मर्चेंट बैंकर इन कंसल्टेशन विद दी, सो जो आपकी कंपनी है वो कंसल्ट करेगी मर्चेंट बैंकर के साथ, एंड जो भी उन्होंने डिसाइड करा है उसको वो फुल डिस्क्लोजर देते हैं सेबी को. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इशू. वन वेयर कंपनी लीड मैनेजर फिक्स अ प्राइस. जब वो दोनों मिलके एक प्राइस फिक्स करते हैं कि इस प्राइस पे इन्वेस्टर्स को मिलेगा, तो उसे कहते हैं हम फिक्स प्राइस. लेकिन अगर वो कोई फ्लोर प्राइस फिक्स करते हैं, कोई मिनिमम प्राइस, एंड उसके बाद एक बैंड लगा दें कि इस प्राइस से 20% इंक्रीज, मतलब एक प्राइस बैंड वो सेट कर दें, सो एक ही वाला तरीका होता है. सो वन इज आइदर दे कैन फिक्स अ प्राइस, एंड सेकंड इज दे कैन स्टिपुलेट अ फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड and leave it to the market forces to determine the final price. So इस प्रोसेस को हम कहते हैं price discovery through book building process. So the book building process is very important. इस पे you can get many questions. What is book building process? Explain the procedure of book building process. So book building process क्या है? जब company in consultation with merchant banker they stipulate a floor price or price band. Rather than fixing a price, they will say yes, this is the floor price and now there is a price band. इसके बीच में investors को अपना कोटेशन डालनी होती है कि इस प्राइस पे वी वुड लाइक टू बाय. इस प्रोसेस को हम कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस. सो अब डिस्कस करते हैं हम प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस. So book building process is basically a process used in IPOs for efficient price discovery. So there is no single price. यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी होती है कि देयर इज अ प्राइस बैंड 100 से लेकर 120 लेट सपोज, एंड इसके बीच में जो भी फाइनल प्राइस फिक्स होगा दैट वुड बी द फाइनल इशू प्राइस. सो वी हैव द कंपनी एंड द मर्चेंट बैंकर हैव नॉट डिसाइडेड एनी प्राइस. So it is a mechanism where during the period for which the IPO is open, bids are collected from the investors at various prices which are above or equal to the floor price. So एक floor price fix कर देंगे, उसके बाद investors bid करते हैं and वो bid करेंगे एक कोई भी price which has to be either the floor price or above the floor price.
The offer price is determined after the bid closing date. So once every investor have made their bid, now the offer price, जो issue price होगा वो decide किया जाएगा when this entire process is over. So a difference between offer of shares through book building process and offer of shares through normal public issue. तो क्या difference रहेगा? So difference would be ऑब्वियसली अगर आपका एक नॉर्मल पब्लिक इशू है तो उसमें आपको प्राइस पहले से पता होता है, सो आप उस प्राइस पे बिड करते हैं. लेकिन जब आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस से करते हैं तो आपके पास प्राइस नहीं होता है. सो एज ए इन्वेस्टर मैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे बिड करता हूँ जो या तो फ्लोर प्राइस के इक्वल होगा या फ्लोर प्राइस से ऊपर होगा. सो द प्राइस एट विच सिक्योरिटीज विल बी अलॉटेड इज नॉट नोन in case of offer of sale through book building process, while in case of offer of shares through normal public issue, the price is known in advance to the investors. So under book building, the investor bid for shares at floor price or above, and after the closure of the book building process, the price is determined. अब एक टॉपिक आता है प्रोस्पेक्टस. सो प्रोस्पेक्टस क्या है? इसको हम अगर लेमन टर्म्स में बताएं, सो सारी ये जो डिटेल्स हैं पब्लिक इशू की और कंपनी के क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है, कहाँ पर वो जो फाइनेंसेस रेज कर रही है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एक कह सकते हैं प्रोस्पेक्टस के अंडर सारी इंफॉर्मेशन एक कंपनी इसको सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है. सो प्रोस्पेक्टस इज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू कंपनीज फ्लोट पब्लिक इशू. While a large number of these are genuine, quite a few may want to exploit the investors. So ऐसा है, कुछ companies genuine है, but some may want to exploit the investors. So therefore, it is very important that an investor, before applying for any issue, identifies future potential of the company. Yes, it is very important for any investor, and आपको पता होना चाहिए वो company की future potential कितनी है. And apart from the guidelines issued by SEBI, that is Security Exchange Board of India, is the disclosure of information to the public. So this disclosure include ये जो disclosure होता है information का, जिसमें reasons for raising the money, क्या reason है उस company का जिससे वो पैसे raise कर रहे हैं, किस reason के लिए, the way money is proposed to be spent, कैसे वो spend करना चाहते हैं उस entire money को जो वो raise करेंगे, and the return expected. So ये सारी information जो होती है is in the form of prospectus. So you can say every information which an investor get, that is through prospectus. कि क्या उसके future plans है, कितना return they are expecting, how they will utilize the money which they are raising. Next topic is cut-off price and floor price in case of book building process. So cut-off price and floor price with difference. So in a book building issue, the issuer is required to indicate either the price band, या तो प्राइस बैंड बता देते हैं या तो आपको फ्लोर प्राइस बता देते हैं कि बेसिक ये प्राइस है. The actual discovered issue price can be any price in the price band or any price above the floor price. This issue price is called cut-off price. So जो final price होता है उसको हम cut-off price कहते हैं. It can be equal to the floor price or it can be above the floor price in the range of price band. So the issuer and the lead manager decide this after considering the book and investors' appetite for the stock. Floor price is the minimum price at which bids can be made. So floor price minimum price होता है, cut off price जो final price होता है वो floor price के equal भी हो सकता है और floor price से बड़ा भी हो सकता है. Price band, तो price band की कोई range होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि floor price 100 दे दिया और आप कोई लिमिट नहीं दे रहे हो तो कोई 900 कोट कर दे. सो देयर हैज टू बी अ लिमिट. सो 20% जनरली हम लिमिट रखते हैं. सो द प्रोस्पेक्टस मे कंटेन आइदर द फ्लोर प्राइस और द सिक्योरिटीज और अ प्राइस बैंड. द स्प्रेड बिटवीन द फ्लोर एंड द कैप ऑफ द प्राइस बैंड शैल नॉट बी मोर देन 20%. तो अगर 100 रुपीज है सो उसका हाईएस्ट होगा 120. सो दैट इज द प्राइस बैंड लिमिट. प्राइस बैंड इन अ बुक बिल्डिंग आईपीओ, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में. सो इसमें अगर क्वेश्चंस होते हैं जैसे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच अ बिड शुड रिमेन ओपन ड्यूरिंग द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, कितने दिन के लिए बिड्स ओपन रहती है, दैट इज 3 days, मिनिमम ऑफ 3 days. एंड कैन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर यूज द बिग बिल्डिंग प्रोसेस
yes, individual investor like us, we can also apply. अब हम बात करते हैं जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है. सो क्या डज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड एनी फैसिलिटी फॉर आईपीओ? क्या ये स्टॉक एक्सचेंज हमें हेल्प करते हैं आईपीओ में? सो यस, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. सो एनएससी की बात करें तो एनएससी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नेटवर्क स्पैन्स अक्रॉस द कंट्री, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्वेस्टर इन रिमोट एरियाज. So NSE decided to offer this infrastructure for conducting online IPOs through the book building process. So NSE operate करता है through its fully automated screen based bidding system है, उसका नाम है NEAT IPO. So NEAT IPO ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप IPO में पार्टिसिपेट कर सकता है कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर. So that enables trading members to enter bids directly from their offices through a sophisticated telecommunication network. So क्या NSE, क्या रूल रहता है NSE का? NSE प्रोवाइड करते हैं आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. So NSE का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर IPO इज NEAT IPO. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट. एक तो हमने प्रोस्पेक्टस देखा, प्रोस्पेक्टस के बाद हम बात करते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की. सो ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता है जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं इन केस ऑफ पब्लिक इशू, एंड ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू. सो अगर नॉर्मल पब्लिक इशू है तो उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट, और अगर वो राइट इशू है तो उसको हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू. So which is filled with registrar of companies and stock exchange. So इन दोनों पे हम वो उसको फाइल करते हैं कोई भी कंपनी. And an offer document covers all the relevant information to help an investor. Obviously prospectus में सारी details होती हैं कि what are the future plans, how the finances would be utilized, what is the return the company is expecting. So draft offer document क्या रहता है? Draft offer document होता है the offer document in draft stage, जिसमें आपको फाइनल प्राइस नहीं होता है, उसमें प्राइस बैंड नहीं होगा, फ्लोर प्राइस नहीं होगा. बेसिक जो भी नॉर्मल कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, जो भी उनके फ्यूचर प्लान्स है, जब वो ड्राफ्ट स्टेज में रहता है ऑफर डॉक्यूमेंट, तो उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट. द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद सेबी एटलीस्ट 21 days प्रायर टू फिलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट. सो 21 days के लिए वो सेबी के पास रहता है, सेबी उसको चेक करती है एंड देन उसके बाद फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट करा जाता है कंपनी के थ्रू. सेबी रूल क्या रहता है किसी भी इशू में? सो एनी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक इशू और a listed company making a right issue of value of more than 50 lakhs is required to file a draft offer document. So सेबी के पास वही कंपनी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देती है जिसकी वैल्यू मोर देन 50 lakhs होती है, चाहे वो लिस्टेड है या न्यू कंपनी है. सो इफ द वैल्यू इज मोर देन 50 lakh देन इट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू सेबी फॉर इट्स ऑब्जर्वेशन. So the company can proceed further on the issue only after getting observation from the SEBI. So once they submit their draft of a document, then they would get the confirmation from SEBI, then only they can proceed further. So ये आप देख रहे हैं, ये एक आपकी वेबसाइट है मनी कंट्रोल. सो मनी कंट्रोल में हमने आईपीओ जो भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई है लेटेस्ट, जो प्रीवियस हुई है, उनकी हमने डिटेल्स देखी. So I would request you all to please visit this site and you can see the previous IPO जो भी इंडिया में IPO लॉन्च हुए हैं उनकी डिटेल्स. So if I click on this, so this is the IPO name, company name, SEBI cards का, SBI cards, Prince Pipes, CSB बैंक. So ये सब IPO लॉन्च हुए थे, डेट इनकी है. Then you have issue size क्या है उनका. Then there is you can see issue price, किस प्राइस पे वो इशू हुई थी, जैसे हमने डिस्कस करा इशू प्राइस रहता है. And इस पे अगर if I click on the profile, so then you can see here you can see lead manager. हमने बात करी थी मर्चेंट बैंक की. So this is your lead manager. कौन है इसमें? Axis Capital Limited, ICI Securities Limited. These are their lead manager, merchant bankers. Registrar हमें पता है ऑफर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को. सो रजिस्ट्रार कौन है इसमें? लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. Then you can see the issue price
फ्लोर प्राइस क्या था 425, इशू डेट एंड साइज हमने कहा था थ्री डेज के लिए ओपन रहता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, सो 13, 14, 15 क्लोज हो गया 15 जुलाई को। लिस्टिंग दोनों एक्सचेंज में हुई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इशू साइज क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अवेलेबल नहीं है अभी। देन यू कैन सी, सो जो भी डिटेल्स होती हैं वो आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट पे। नेक्स्ट इज द असाइनमेंट। अब आपको क्या करना है, आपने देखा है प्राइमरी मार्केट, इसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करे। कंपनी जब भी पब्लिक इशू को लेकर, तो काइंड ऑफ इशू होते हैं तीन तरह के। पब्लिक इशू हो सकता है, इट कैन बी प्रेफरेंशियल इशू, इट कैन बी राइट इशू। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या सेबी का रोल रहता है, क्या स्टॉक एक्सचेंज का रोल करता है, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। So the assignment, once you go through the video, then the assignment is a company is assigned to you. Next slide mein I would share the name of the company and the name of the student, and then you are required to find out the following IPO details. जैसे हमने अभी IPO details देखी यहाँ पर, so आपको कंपनी जो अलॉट हुई है उसकी IPO details देखनी है, कौन सी, उसका सिंबल क्या है कंपनी का, इशू पीरियड कब हुआ था, कौन सी डेट, इशू टाइप क्या वो नॉर्मल इशू था, क्या वो बुक बिल्डिंग इशू था, प्राइस रेंज कितनी थी, फ्लोर प्राइस कितना था और कितनी रेंज थी, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना हुआ, रिटेल इन्वेस्टर ने कितना मैक्सिमम अमाउंट सब्सक्राइब करा, एंड बुक रनिंग लीड मैनेजर कौन से थे। लीड मैनेजर मतलब मर्चेंट बैंकर कौन से थे, मर्चेंट बैंक्स कौन से थे जिन्होंने हेल्प करा। जैसे हमने देखा इसमें लीड मैनेजर एक्सिस एंड ICICI सिक्योरिटीज थे, वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। So these are the name of the company and the student. So you can see Dimpy Arya, SBI Cards and Payment Services Limited का IPO जो भी आया है लेटेस्ट, उसकी आपने ये डिटेल्स निकालनी है। Then similarly Priya, then you have Poonam, Rashi, Sakshi, Shivani, Tanuja, Himanshu Joshi, then you have Kamal Kapri, Mohit Punetha, Sumit Kumar। MSTC लिमिटेड का IPO जो है लेटेस्ट, उसकी सारी डिटेल्स आपने निकालनी है। क्या डिटेल्स निकालनी है, दीज आर द डिटेल्स, विकास एंड अभिषेक शर्मा, and these are the names of the company. So if you have any issue, you can visit National Stock Exchange website, Bombay Stock Exchange website, वहां पर जाके आपने देखना है IPO से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसमें आपको ये सारी कंपनीज दिखेंगी, उनकी प्रोफाइल उसको विजिट करिए, एंड उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करके ये डिटेल्स आपने आइडेंटिफाई करनी है उस IPO की, इस कंपनी के IPO की। So if you have any problem, you can let me know, and you can call me also. So that is all for today. Thank you so much.